ذکر ہیں، جو نہیں جاننے والے وہ لا تعلمون ہیں۔ ایک ہے مسئلہ پوچھنے والے، ایک ہے مسئلہ بتانے والے۔ اب کیسے پتا چلے کہ پوچھے گا کون کون؟ ہر 10 کلومیٹر کے بعد سردار صاحب بولی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والا پاکستان کی زبانوں کو پہچان سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت 300 سے زیادہ زبانیں صرف اور صرف یورپ میں بولی جاتی ہیں۔ ایشیا اس سے الگ ہے، باقی ممالک اس سے الگ ہے۔ اس طرح آپ اگر دنیا کی زبانوں کو اکٹھا کریں تو اس وقت تقریباً 1000 بولیاں پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں۔ سوال کیا جائے گا اہل ذکر سے۔ اب اہل ذکر وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے ایک کی بولی سمجھ میں آئے اور دوسرے کی بولی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسا ہونا چاہیے جو سب کی زبان کو سمجھتا ہو۔ اور قرآن خالی انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ۔ ایک جن کا فقرہ خدا نے قرآن میں لکھا کہ میں بڑا عجیب قرآن سن کر آ رہا ہوں اور میں اس پر ایمان لے آیا۔ قرآن جنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ حضور جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے، جنوں کا بھی خالق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب امام وہ نہیں ہوگا جو صرف 2 شہروں کے لوگوں کے ووٹوں سے بنا ہو، بلکہ امام وہ ہوگا جو جنوں کا بھی امام ہو، انسانوں کا بھی امام ہو۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ڈھونڈ کے دکھائے، دنیا اگر ان کے پاس ہو کہ جسے جن بھی امام مانتے ہو، ورنہ خود امام شافعی اپنی زبان سے فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے۔ علی حبہ جنہ کشیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ پھر فرمایا وسیع مصطفیٰ حقا، خدا کی قسم مصطفیٰ کا حقیقی جانشین ہے۔ امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام ہے۔ ایک بندے نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے آ کر سوال پوچھا، یا علی دنیا میں سب سے زیادہ تیز نگاہ کس کی ہے؟ ہر ایک کی نگاہ کا مختلف اثر نکلتا ہے، تیز ترین نگاہ کس کی؟ مولا کائنات نے فرمایا ہدہد کی، اور امیر نے فرمایا کہ خدا اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی تحقیق کی ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر عدسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکٹ ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جو اس کی نگاہ کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ 100 کوہ تک دیکھتا ہے ہدہد۔ مولا علی نے فرمایا سب سے تیز نگاہ ہدہد کی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ اس نے اگر نگاہ اتنی تیز ہے تو شکاری کے جال میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ امام نے فرمایا جواب مجھے معلوم ہے، لیکن میں بتاؤں گا تو تم مانے گا نہیں۔ امام نے کاغذ پہ کچھ لکھا، لکھ کے اس پرچی کو بند کیا اور اس کی جیب میں ڈالا اور فرمایا میں ہدہد کو بلا دوں۔ امیر المومنین نے اشارہ کیا، ہدہد سامنے آ گیا۔ بندہ کہنے لگا مولا ایک تو مجھے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، تو میں اسے کیسے بات کروں گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تو خود پسند کر، ہدہد تو سے تیری زبان میں گفتگو کرے یا تو ہدہد سے ہدہد کی زبان میں گفتگو کرے؟ اس نے کہا جی ہدہد سے کہے میری زبان میں بات کرے۔ ہدہد نے عربی زبان میں گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا بندہ خدا جو علی نے فرمایا سچ ہے، نگاہ میری سب سے تیز ہے۔ اس نے کہا پھر شکاری کے جال میں کیوں پھنستے ہو؟ ہدہد کہنے لگا
जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। होद उड़ गया। जब उड़ गया वो, तो मौला ने कहा अब निकाल वो पर्ची। पर्ची निकाली तो वही फिक्रे लिखे हुए थे जो होद बता के जा रहा। अब सीधा सादा हुक्म है कुरान मजीद का कि अहले ज़िक्र से सवाल करो। अब अहले ज़िक्र पहले तो हर जबान जानते हो। एक मस्जिद नबी का दरवाजा है जिसका नाम है बाब शौबान, अजदहे वाला दरवाजा। इस पर शाम के एक फिरौन को एतराज हुआ अपनी बादशाहत के जमाने में। उसने आके कहा कि इसका नाम बाब शौबान क्यों है? उन्होंने कहा मौला अली एक दिन खुतबा दे रहे थे, यहां से एक अजदहा आया, उसने अपनी जबान के अंदर अमीर उल मोमिनीन से सवाल किया, मौला ने उसे उसी की जबान में जवाब दिया। तब से हम मदीने वाले इस दरवाजे को बाब शौबान कहते हैं। उसने कहा जब तक ये दरवाजा रहेगा अली की फजीलत दुनिया सुनती रहेगी, क्यों ना मैं इस दरवाजे का नाम बदल दूं। उन्होंने कहा जी दरवाजे का नाम रखा गया है एक वाक़े से, अब यहां तो कोई इससे बड़ा वाक़या हो, फिर मुझे दे दे, फिर दुनिया नाम बदलेगी, दुआ है, फिर दुनिया नाम बदलेगी। तो उसने अपने गुलाम से कहा कि सर्कस वाले को ले आओ। सर्कस वाले को ले आया। उसने कहा तेरा हाथी तेरी कितनी मानता है? उसने कहा जो जो कहता हूं मानता है। उसने कहा बस तूने एक मेहरबानी करनी है, जब मैं मिंबर पे बैठा हूं तो खाली दरवाजे पे हाथी ले आना, वो सिर्फ चिंघाड़ेगा, इधर से मैं भी उसी की तरह आवाज निकाल दूंगा, फिर इसका नाम बाब फील रख देंगे। खुदा की कसम हाथी आया भी सही। अल्लाह में हजरत अब्बास की कसम, हाथी को भी पता था कि मेरा इमाम कौन है। हाथी चिघाड़ने की बजाय दौड़ता हुआ मिंबर के पास आ गया और अपनी सूंड में उस बुजुर्ग को उठाया और पूरे बाजार की सैर करवा के फेंक दिया। जब ये जख्मी हालत में शर्मिंदा वापस आए तो आप वजीरों ने पूछा क्या ख्याल है, दरवाजे का नाम बाब फील रख दे। 1400 साल हो गए, आज तक दरवाजे का नाम तब्दील नहीं हो सका। जबाने जानता हो। दूसरी बात, अगर यहां से कोई एक साहब मुझसे सवाल करने लगे और दूसरे भी खड़े हो जाए, वो भी सवाल शुरू कर दें, तो मैं बशरी तकाजे के तहत एक को मना करूंगा। इसको कहते हैं मशगूल हो जाना, मशरूफ हो जाना। जैसे आप फोन करें, पहले बात हो रही हो तो इंगेज टोन मिलती है, यह है मशगूलियत। अब जब कोई मशगूल हो जाए तो वो दूसरे को चुप करा देगा। अहले ज़िक्र के लिए यह शर्त नहीं, वो भी बोल रहा हो, वो भी बोल रहा हो, वो भी बोल रहा हो और वो मशगूल न हो। ये तो सिफात है। आइए अब मैं कुरान मजीद से अहले ज़िक्र का तर्जमा करना चाहता हूं, किसी किताब से नहीं, किसी रिवायत से नहीं, किसी तारीख से नहीं कि किसी को एतराज हो। शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों के इज्तिमा में मैं कुरान मजीद से अहले ज़िक्र का तज़किरा करता हूं। ज़िक्र सूरह मुबारक फुरकान, कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने इस रसूल को तुम्हारी तरफ ज़िक्र बनाकर भेजा। और है या नहीं? ज़िक्र से मुराद है पैगंबर की जात। इसलिए फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही मुस्तफ़ा को भेजा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब ये अलग बात है कि अली का बाप हम बन के हिफाजत करता, हमने नाज़िल किया। और अब ये अहल क्या है? सामईन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहल के कुल तर्जमे 4 हैं और मैं चारों आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, माबूद इस वक्त कोई मुझसे भी बड़ा आलिम है? फरमाया है, दरिया के किनारे खिज़र है उसका नाम।
शौक इल्म में नबी चल पड़ा कि वो क्या चीज है जो इससे आती है और मुझे नहीं आती। लेकिन जब सामने पहुंचे तो खिज़र ने अपने स्कूल में दाखिला देने से भी इनकार कर दिया और फरमाने लगे तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। यह वाकया पूरा का पूरा कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एडमिशन टेस्ट ले लो, चेक करके देख लो, फेल हो गया तो चला जाऊंगा। शर्त यह तय पाई कि 3 से ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं है, इससे ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं। शर्त है कि बस बोलना नहीं। दोनों कश्ती में चढ़ बैठे, कश्ती सेंटर में पहुंची, खिज़र ने सुराख कर दिया। पूरा वाकया नहीं पढ़ना चाहता हूं वरना मौजू से हट जाऊंगा। जैसे ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख फरमाया, मूसा तड़प के खड़े हो गए। फरमा अखरकतहा मिन अहलिहा, तू इनके अहल को डिबोना चाहता है। पता चला अहल का मतलब है सवार। ये मैंने कुरान मजीद से आपकी खिदमत में अर्ज किया, जो इसके सवार है क्या तू उन्हें डिबोना चाहता है? सामईन गिरामी, बात यह अधूरी न रह जाए, खाली इसी जोश को पूरा करता हूं। खिज़र ने बाद में बताया कि पीछे एक गासिब बादशाह आ रहा था जो गरीबों की कश्तियां छीन लेता था, लेकिन ऐबदार कश्ती को छोड़ देता था। खिज़र ने फरमाया मैंने जानबूझकर इसमें ऐब डाल दिया, ये मुरम्मत करके बचा लेगा, पूरी की पूरी कश्ती नहीं चली जाएगी। जिक्र का मतलब रसूल, अहल का मतलब सवार। अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। और फरमाया आपने ये नहीं फरमाया, अगर तुम नहीं जानते हो तो जिक्र का मतलब है रसूल, अहल का मतलब है सवार। अब पूरी दुनिया में तलाश करें पैगंबर के सवार कौन है। अहमियत सवारी की भी होती है लेकिन सवार के बराबर नहीं। लदने वाला और है, लादने वाला और है, उठाने वाला और है, उठने वाला और है। आप आए मुझे सलाम करने, जाकिर हुसैन समझकर आपने कहा अल्लाह सब अस्सलाम वालेकुम, मैंने पांव आगे कर दिया। आप कहेंगे बड़ा बदतमीज आदमी है, हालांकि पांव भी मेरा अपना है, तवज्जो है या नहीं? लेकिन अगर मैंने सर झुका दिया कहेंगे बड़ा शरीफ आदमी है। फर्क क्या है? पांव ने मुझे उठाया हुआ है, सर को मैंने उठाया हुआ। अगर दुनिया सिर्फ इसी बात को समझ ले कि उठाने वाले और होते हैं और जिन्हें नबी उठाए वो और होते हैं। पूरी कायनात में तलाश करके बताइए कि कायनात आदम और आलम में वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने पैगंबर को अपनी सवारी बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर एक बाप है और 2 बेटे, बाप अली, बेटे हसन और हुसैन। इनके अलावा कायनात में है ही कोई नहीं जिसने रसूल पर सवारी की। यहां कुछ बेवकूफ हजरात एक फिक्रा कहते हैं जी मौला अली तो इसलिए हजूर को अपने कंधों पे नहीं उठा सकते थे क्योंकि रिसालत का बोझ बड़ा भारी। बेवकूफ ही होता है जी, अली रिसालत का बोझ नहीं उठा सकते थे। यही फिक्रे किसी ने मेरे छठे इमाम से कह दी। अब इमाम का जवाब सुनिए। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हजूर ऊंटनी पर बैठते थे। ऊंटनी पर बैठते थे, मैं सादी ऊंटनी की बात कर रहा हूं, वैसे घबरा गए। मैं हजूर ऊंटनी पर बैठते थे। उन्होंने कहा जी बैठते थे। तो फरमाया तेरी अक्ल मारी गई है,
जानवर रिसालत का बोझ उठा सकता था, शेर खुदा रिसालत का बोझ नहीं उठा सकता। घोड़े पे हजूर बैठे, उसने रिसालत का बोझ उठा लिया। ये खाली बेवकूफी है। फतह मक्का हो गई थी। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया, बातिल चला गया। बातिल के लिए मिट जाना ही था। पैगंबर बुतों को तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते एक ऊंची जगह पे पड़ा हुआ बुत आया। फरमाया नाइन अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है? अर्ज की लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व अम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। कि या अली आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और मेरे कंधे पे चढ़ के इस बुत को तोड़ दो। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है, ये अली की फजीलत नहीं, रसूल की मजबूरी थी। क्योंकि बहुत दूर था, अली का हाथ नहीं जाता था, पैगंबर का हाथ नहीं जाता था। मैंने कहा जिसका झूठे खुदा तक हाथ नहीं जाता, उसका सच्चे खुदा तक हाथ कैसे जाता है? और दूसरा, अगर अक्ल हो तो सोच के बताओ कि चांद ज्यादा दूर है या बुत ज्यादा दूर है? जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े आ जाए, वो 10 फुट से बुत क्यों नहीं गिरा सकता? चांद को तो या लिया करो, ठीक है। चांद को तो उंगली के इशारे से हजूर वापस बुला लें और बुत को नहीं तोड़ सकते। मसाइल उल-उक़बा में है कि एक बड़े बुजुर्ग ने आकर कहा मैं तोड़ दूं, खड़े खड़े, मेरा कद बेहतर है। खुदा की कसम, पैगंबर ने जो जवाब दिया वो फिक्रा नहीं है, पूरा मजहब बता दिया। और जब मैं तोड़ दूं नीचे खड़े खड़े, मेरा कद बेहतर है। पैगंबर ने उसके सीने पे हाथ रख के पीछे धक्का दिया। फरमाया जो पूछ चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। और है या नहीं है?